Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good morning, student. So yesterday we have studied about the chemical change, which is takes place naturally, and some chemical change which are man-made. क्या देखा हम लोगों ने कल? Natural chemical change and man-made chemical change. In natural chemical change, we have seen that respiration, photosynthesis, this process takes place in the nature automatically. So that's why they are natural chemical change. And under the man-made chemical change, we have seen manufacturing of the different things का manufacturing, burning of the fuel means combustion of the fuel, cleaning of the shahaba tiles using the hydrochloric acid, softening of the hard water. So these examples we have studied under the man-made chemical change. Now yesterday we have started about the learning the chemical bond means how the chemical bond formation takes place in the atoms of a एलिमेंट जो एटम्स है एलिमेंट के उसमें किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट टू बी स्टेबल हर एक क्या है ये एटम्स जो है एलिमेंट का वो क्या होना चाहता है स्टेबल एंड कब वो स्टेबल होता है जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल ऑक्टेट कंप्लीट करता है या डुप्लेट कंप्लीट करता है और वैलेंस सेल क्या है द आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहर वाले सेल को हम क्या बोलते हैं वैलेंस सेल क्या बोलते हैं वैलेंस सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नाउ वी हैव लर्न द वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड रहती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर now you see formation of the ionic bond okay so here the sodium chloride molecule is taken as an example how there is a bond between the sodium chloride so now in sodium chloride there are the two atoms first one is the sodium metal and second one is the chlorine gas ये दो एटम्स है और ये दोनों एटम कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड every day we use the sodium chloride in our food sodium chloride is nothing but the salt that we eat that we add in the vegetable in the yes foods जो फूड में हम क्या करते हैं नमक ऐड करते हैं वही नमक क्या है NaCl है तो NaCl कैसे फॉर्म होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड under the ionic bond okay let's start the ionic bond let us first we see how the compound sodium chloride formed from the atoms of the constituent elements sodium and chloride अब हमको क्या देखना है सोडियम क्लोराइड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम से कैसे फॉर्म हुआ है from for this purpose let us see the electronic configuration of sodium and chlorine इसके लिए हमको क्या देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन तो नाउ सी द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है 11 तो नाउ yes 11 electrons are arranged as 2,8,1 2,8,1 because yes the capacity of the first cell is 2 that's why 2 electron place in the first cell now capacity of the second cell is 8 that's why 8 electron place in the second cell 2 and 8 become 10 now yes 1 extra electrons goes in the third shell में वो जाता है तो 2 plus 8 plus 1 become 11 similarly yes chlorine its atomic number is 17 it means it contains the 17 electrons अब इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 17 2,8,7 2,8,7 now yes 2 plus 8 plus 7 becomes 17 now why is 2 is written in the first cell not the 3 4
because the capacity of the first cell is 2. That's why we cannot write more than the 2 electron in the first cell, and the capacity of the second cell is only 8. So that's why we cannot write more than the 8 electron in the second cell. Now see the last cell, it have the 7 electron. So in the sodium there are the 3 cells, सोडियम में भी 3 सेल्स है और क्लोरीन में भी 3 सेल्स है, बट सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज द वैलेंस सेल, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, वेर एज इन क्लोरीन इट्स आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंस सेल contain the 7 electron, it contain the 7 electrons. Now to complete the octet, octet मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। नाउ यस इन सोडियम 2,8, but last cell contain the 1 electron. Now yes, it need the 7 electron to complete the 8 electron means octet in the outermost cell, but there is no any atoms of element that can gives out the 7 electrons. अब ऐसा कोई भी एटम्स किसी एलिमेंट का नहीं है जो 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे सके। तो दैट्स वाई ये क्या करता है, ये इट लूजेस इट्स ओन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो ये बाहर के सेल्स का खुद का एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर दिख रहा वो लूज कर देता, लॉस्ट कर देता या दे देता दूसरे को। अब देखो यहाँ पे 2,8,7, नाउ क्लोरीन इट आल्सो वांट टू कीप द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखना चाहता है, और क्या है ये, हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है। तो इन द नेचर देयर आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट विच कैन गिव्स आउट द 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो नेचर में ऐसे एटम्स अवेलेबल है जो 1 इलेक्ट्रॉन देने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, और उससे ज़्यादा देने वाले ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या करते हैं, वो देते हैं। सिमिलरली ये क्या है, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1, 2 और 3। तो हियर yes this sodium gives out 1 electron. After giving the 2 electron it have the 2,8. आफ्टर गिविंग द 1 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2,8। ओके, एंड हियर क्लोरीन आफ्टर एक्सेप्टिंग द 1 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,7। क्या हो जाता है, देखो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देता, तो क्या बचा इसके पास, 2,8। और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ये जो इसने लॉस्ट किया था उसको वो एक्सेप्ट कर लेता, ले लेता है। ओके, यू कैन से इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ओनली 1, बिकॉज इसको 8 कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 7 है, 8 ही कंप्लीट करना है, तो 1 की ज़रूरत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2,1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8। अब देखो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीटेड। इस क्लोरीन का एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। सिमिलरली जो सोडियम है 2,8,1 है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये क्या बचा उसके पास, 2,8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट किया, वन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने एक्सेप्ट करके उसको एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया। नाउ यस, व्हाट हैपेंस आफ्टर गिविंग एंड टेक ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम है, सोडियम में स्टार्टिंग में जब ये 2,8,1 है, तो क्या है, ये 11 प्रोटॉन्स है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, 11, 11 प्रोटॉन्स। इनिशियली कितने प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इज 11, तो 11 प्रोटॉन मीन्स 11 पॉजिटिव चार्ज एंड
11 electron means 11 negative charges. So both charges are same, positive charge as well as negative charge is same. That's why sodium in the electronic configuration 2 comma 8 comma 1, yes, do not have any charge, even though it contain the positive and negative charge, but its net effect, उसका पूरा इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल, इट बिकम जीरो, वो हो जाता है क्या है, यस, जीरो हो जाता है. सिमिलरली इन क्लोरीन एटम में भी सेम ऐसे ही क्या है, ये से अर्लियर बिफोर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन देयर वेयर ये 17 प्रोटॉन, मीन्स 17 पॉजिटिव चार्जेस. 17 प्रोटॉन है तो 17 पॉजिटिव चार्जेस है, 17 पॉजिटिव चार्ज एंड 17 नेगेटिव चार्ज. तो बोथ चार्जेस आर बैलेंस्ड, दोनों चार्जेस क्या है, बैलेंस है. अब क्या है ये, आफ्टर टेकिंग द वन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बेयर द नेगेटिव चार्ज, तो वन नेगेटिव चार्ज विल बी एडेड. तो क्या हो जाएगा, 17 पहले से था और एक नेगेटिव चार्ज और ऐड हो गया, तो टोटल नेगेटिव चार्जेस आर 18. टोटल नेगेटिव चार्जेस आर 18. दैट्स व्हाई yes, this chlorine bear the one negative charge. Earlier it was 17, but yes, after taking one electron, now yes, it's become 18 electron. So that's why there is one extra electron and hence it bear the negative charge. And yes, the sodium contain the positive charge. So in this way charges are developed on the atoms after taken give of the इलेक्ट्रॉन देने और लेने से इस तरह से उसके ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं. We have seen the correlation that valency of sodium is 1 as it has one electron in its valence shell. In the fifth lesson you already studied about the valency and valence electron. इसके बारे में आपने पहले ही स्टडी किया है. वैलेंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन and the valency of chlorine is 1 as its valence shell is short of only one electron to have to complete the octet. और क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या है, 1, बिकॉज उसका वैलेंस सेल जो है 1 इलेक्ट्रॉन उसमें शॉर्ट है टू कंप्लीट द ऑक्टेट. On loss of a electron valence electron from M cell, the penultimate shell L of the sodium atom become the outermost shell. अब ये पेनल्टीमेट क्या है, यस, प्रीवियस वन, उसके पहले वाला. तो पहले ये क्या है, 3 सेल्स है के एल और एम, किसके अंदर, सोडियम के अंदर. जब उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस्ट कर दिया. नाउ सी हियर, ये डायग्राम देखो, इसमें कितने सर्कल्स है, ये बीच वाला सर्कल न्यूक्लियस है, उसको छोड़ के 1 2 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मीन्स 3 शेल्स है. इसने क्या किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया. दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय द रेड डॉट्स, रेड डॉट से शो किया है ताकि आप क्या कर सको, उसको समझ सको. तो इसने क्या किया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है. तो व्हाट हैपेंस, एक देने से क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन. देने के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल्स में नहीं है. तो दैट्स व्हाई यस दैट न्यूक्लियस दैट शेल डिसअपियर, वो गायब हो जाती है. तो क्या बचा, ओनली 2 सेल्स. in first cell 2 electron, in second one 8 electron. Now see this red dot which is taken by chlorine is nothing but the electron. So now see, yes, the outermost shell of the chlorine now contain the 8 electron. That's why yes, the number of electrons increase by 1. यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इंक्रीज हो रहा है. तो here what happens, the central part have to yes attract this extra electron also. So therefore the force of attractions decreases as compared to the earlier one. जो पहले वाला केस था उसके कंपेयर में यहाँ पे force of attraction decrease हो जाता है. So that's why the size of the chlorine increases
whereas the size of the sodium is decreases. It means those atoms which form the positive ion, yes, their size, yes, decreases, whereas those form the negative ion, their size increases. So here, yes, this outermost cell of, okay, yes, disappears and the L cell become the outermost cell after giving out of the electron, but in case of the chlorine the outermost cell remain the L cell. L cell ही उसका, सॉरी, KLM cell ही क्या रहता है उसका outermost cell. It has 8 electron in it. Now ये सोडियम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम, कि सोडियम ने क्या किया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. वैलेंस शेल कौन सा इसमें, एम है. अभी शुरुआत में इधर क्या है, एम. उसने एक इलेक्ट्रॉन एम से लॉस किया तो उसका पेनल्टीमेट सेल, मतलब एम के पहले वाला जो सेल है वो क्या बन गया, आउटर मोस्ट सेल. और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 8. So it has the 8 electron in it, means L cell of the sodium after losing the electron have the 8 electron. However, the electron number become 10, hence positive charges plus 11 on the sodium nucleus is imbalance, and a sodium plus cation carrying net positive charge is formed. On the other hand, valence shell of the chlorine atom contain an electron less to octet state. अब जो क्लोरीन है वो ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने से क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन उसमें लेस है, कम है. ऑन एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ऑक्टेट ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीटेड. एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बाहर से एक्सेप्ट करने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता. हाउएवर चार्ज balance is charge balance is disturbed due to the addition of the one electron to the neutral chlorine atom. This results in formation of an anion Cl minus carrying a negative charge -1. When the element sodium and chlorine combines, अब देखो यहाँ पे, yes, now this having the positive charge and this having the negative charge. So when the element sodium and chlorine combines, an atom of sodium gives its valence electron to chlorine atom, whereas the cation Na plus and Cl minus are formed due to electrostatic force of attraction. Now yes, we know that in between the opposite charges there is attraction. So here there is opposite charges, this is positively charged now and this is negatively charged. So there is a force of attraction and that force of attraction is called as the electrostatic force of attraction. तो ये जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, and there is a attraction between them, that's why yes, there is a formation of bond. So due to electrostatic force of attraction between the opposite charges, the opposite charge ion get attracted to each other and chemical bond is formed between them. Chemical bond formed Chemical bond formed due to an electrostatic force of attraction between the oppositively charged cation and anion is called an ionic bond or electrovalent bond. So such type of the bond where there is a electrostatic force of attraction between the oppositively charged ion called the electrovalent bond or ionic bond. Because here the is participating atoms are in form of the ions, यहाँ पे जो participate कर रहे हैं वो ions के form में, that's why it is called as the ionic bond or its another name is the electrovalent bond. So here what we have seen, the sodium chloride compound is yes ionic compound. अब ये इस तरह के बने हुए compound को हम क्या बोलते हैं, ionic compound. The compounds formed by means of one or more ionic bonds is called ionic compound. Formation of an ionic compound sodium chloride from the elements sodium and chlorine is shown with the help of diagrammatic representation of electronic configuration in figure 13.3. अब देखो ये formation of an ionic compound sodium chloride from the elements sodium and chlorine is shown
with the help of the diagrammatic representation of electronic configuration in figure 13.3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से क्या किया है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसको एक्सप्लेन किया है। वन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव ऑन एन आयन। The valency of an ion is equals to magnitude of positive और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब जो वैलेंसी है किसी आयन की वो किसके इक्वल है, उस एटम के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्जेस है और कितने नेगेटिव चार्जेस है। फॉर एग्जांपल हियर सोडियम, यहाँ पे सोडियम है। नाउ सोडियम बियर द पॉजिटिव वन पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज वन, इट्स वैलेंसी इज वन। Now yes, chlorine negative, it also have the one negative charges, that's why it has a valency 1। Now yes, O minus minus, or you can write down the O 2 minus, so here there are the two negative charges, that's why its valency is 2। तो इसकी वैलेंसी किसकी 2 है, ऑक्सीजन की। बट क्लोरीन और सोडियम की वैलेंसीज क्या है, 1। ओके, सपोज मैग्नीशियम Mg plus plus, so this can also be written as Mg2 plus, Mg2 plus, so this is also, yes, this is yes positive ion and have the two positive charge, that's why its valency is 2। so yes, the number of charges is equals to number of valency of that yes एलिमेंट्स, उस एलिमेंट का क्या होगा, उसके चार्जेस के इक्वली उसकी क्या होगी, वैलेंसी। The valency of an element ion is equals to magnitude of the positive or negative charge on it. An ion forms the same number of ionic bond as its valency। अब कोई भी एटम्स है तो क्या करेंगे, जितनी उसकी वैलेंस, जितने उसके ऊपर चार्ज है उतने ही बॉन्ड वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा। नाउ सी, नाउ फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब इसके बाद क्या है, ये हम लोगों को क्या देखना है, मैग्नीशियम। तो दिया द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट गिवन, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया। नाउ सी द मैग्नीशियम, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,2। कितना है, ये 2,8,2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है मैग्नीशियम का, 2,8,2। नाउ ये सी मैग्नीशियम Mg, okay, now yes 2,8,2, तो yes 2 become stable, it loses the 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है जो ये डायग्राम में शो किया है। ओके, और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 2 क्लोरीन आइटम्स आ रहे हैं। यस, बिकॉज वन क्लोरीन आइटम कैन टेक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसने कितना लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, बट क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ओनली 1। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड बाय 1 क्लोरीन आइटम। तो नाउ ये दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड बाय द सेकेंड क्लोरीन आइटम। ये सेकेंड क्लोरीन आइटम इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करता है। दैट्स वाई इन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम इज अलोन बिकॉज इट हैव द 2 पॉजिटिव चार्जेस एंड क्लोरीन आइटम इज यस डबल। यहाँ पे क्लोरीन के 2 आइटम्स है बिकॉज 1 chlorine atom can take the 1 yes electron। so here the number of chlorine become 2 because yes that magnesium bear the 2 positive charge, इसके ऊपर 2 चार्जेस है तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन्स आए हुए यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे yes 2,8,1। now yes chlorine's valency you have seen in the yes this previous one example। तो now देखो यहाँ पे क्या हो गया, yes मैग्नीशियम एक बॉन्ड यहाँ बना क्लोरीन के साथ, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द मैग्नीशियम इज 2, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स द 2 बॉन्ड। बट यस क्लोरीन हैव द 1 नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट फॉर्म द 1 बॉन्ड। द फिगर 13.4 shows that how the ionic compound magnesium chloride is formed from the element magnesium and chlorine। Show the formation of the following ionic compound from the corresponding elements using the two methods, namely numerical
and diagrammatic representation of the electronic configuration. नाउ अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे न्यूमेरिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. और न्यूमेरिक क्या है? यस दैट वी हैव ये स्टडी इन द प्रीवियस टू प्रीवियस लेसन में जो हमने देखा हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फार्मूले कैसे लिखना यूजिंग द इट्स वैलेंसी को यूज करना. तो वो क्या है? ये न्यूमेरिकल मेथड है. तो हम लोगों को किन किन चीज़ों को क्या करना है? ये दोनों न्यूमेरिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करना है. के प्लस और एफ माइनस. तो हियर के प्लस क्या है? ये पोटेशियम एंड एफ क्या है? फ्लोरीन. तो इन दोनों के बीच में किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है दैट वी हैव टू यस शो बाय द diagrams as well as numerically yes following the four steps. Next, form from potassium 19 and fluorine 9. B, calcium oxide from the calcium and oxygen. हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करना है. नाउ फर्स्ट वन क्या है? पोटेशियम फ्लोराइड. और दूसरा क्या है? यस कैल्शियम ऑक्साइड. इन दोनों के इस तरह से डायग्राम जैसे कि फिगर 13.3 एंड 13.4 वैसे ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करना है. एंड देयर वैलेंसीज आर ऑलरेडी गिवन. सोडियम 2,8, 2,8,8,1. Okay. So now yes there is a one extra electron, so it will form the one positive charge. For fluorine 2,7, it need the one electron to complete the octet. That's why it will yes accept the one electron. So there will be one potassium and one fluorine. And in the sodium calcium oxide, calcium yes gives out the two electron, and yes that oxygen, one oxygen take the two electron. So that's why yes its formula will be CaO. Now yes covalent bond. अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड. फर्स्ट वी हैव सीन द आयोनिक बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय गिव एंड टेक ऑफ द इलेक्ट्रॉन. गिव और टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बनता है. अब क्या देखने जा रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड. नाउ यस कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र नहीं होता है. बिकॉज यस इफ़ द टू नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर. जब दो नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो दैट नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू डू नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन. जो नॉन मेटल होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने की. मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी नहीं रहती है. दे कैन टेक और दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन. ऐसी एबिलिटी किस में होती है? ये नॉन मेटल के अंदर जो ऐसे यस क्या ये एटम्स है एलिमेंट के जो नॉन मेटेलिक है उसके अंदर इस तरह की एबिलिटी होती है. जनरली ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ द टू एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी कंबाइन. अब कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दो एटम सेम एलिमेंट के हो और सिमिलर प्रॉपर्टीज हो और वो जब कंबाइन करते देन ओनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. सच एटम कैन नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन. ये ऐसे एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते. मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे और ले नहीं सकते. इंस्टेड दीज एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते. मतलब एक एटम दूसरे को दे नहीं सकता है और दूसरा ले नहीं सकता है. तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम वो क्या करते हैं? ये खुद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ एटम्स एंड देयर बाय इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ बोथ द एटम्स बिकम completed. So here there is a no complete transfer of the electron or not. So what happens here? There is a sharing of electron. That's why that shared electron become part of the both atoms. Let us first consider an example of the hydrogen molecule H2. Now yes, hydrogen molecule formed from the hydrogen atom itself. ये hydrogen atom के खुद से atom से बनता है. We have seen the chapter inside the atom that hydrogen atom contain the one electron in duplet
इट्स डुप्लेट इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब डुप्लेट क्या है? यस, कंप्लीटिंग द टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना ही क्या है? यस, डुप्लेट है, डुप्लेट। तो अभी इसका क्या है? यस, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। The two atoms of hydrogen are identical and have the similar tendency। अब दो एटम जो इसके हैं वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है, एंड देयर फॉर दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डुप्लेट ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम इज कंप्लीट एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम, एंड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर डुप्लेट्स आर कंप्लीटेड। जब वो क्या करते हैं? अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो बोथ डुप्लेट कंप्लीटेड मीन्स क्या है? ये फर्स्ट हाइड्रोजन इट कंप्लीट द टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, and similarly second one is also complete the two electron in its outermost cell. The chemical bond formed by sharing of valence electrons of the two atoms with each other is called covalent bond. So the bonds which is formed by the sharing of valence electron, ऐसे bonds जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से फॉर्म होते हैं, called the covalent bond. One covalent bond is formed by sharing of the two valence electrons। एक covalent bond दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। The figure 13.5 shows the formation of the H2 molecule from the two hydrogen atoms. Using the diagrammatic representation of electronic configuration, a covalent bond between the two atoms is also represented by dash joint their symbols. Now see the hydrogen. Its outermost shell contains the one electron. Now see the second atom of the hydrogen. It also contains the one electron. Now yes, here hydrogen and hydrogen both have the similar property. So that's why they combines. Okay, and this first electron of the first atom is shared with the second atoms of hydrogen. Similarly, the electron of the second atom is shared with the first one, and because of that, yes, both have completed the duplet। इसकी वजह से दोनों ने क्या किया? अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। Now let us see how the an water molecule let us see how an water molecule of a covalent compound is formed from hydrogen and oxygen atom। अब देखो यहाँ पे किस तरह से इस वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसके बारे में क्या एक्सप्लेन किया है। देयर आर द 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ द ऑक्सीजन एटम। अब देखो ये ऑक्सीजन एटम जो है मिडल में, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, नहीं नहीं सॉरी 6 है, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक configuration is 2,6। okay, to complete the octet complete करने के लिए it required the 2 electron। its outermost shell contain the 6 electron, but to complete the 8 electron it need the 2 electrons। उसको कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। नाउ yes, the one hydrogen atom can share the one electron। so to share the 2 electrons, 2 hydrogen atoms comes together, and one atom share the one electron with the oxygen, second hydrogen atom share the is one electron, and because of that the octet of the oxygen is completed and duplets of the hydrogen, both hydrogen completed। so that's why its formula is H2O, means for one oxygen, yes, there is a 2 hydrogen required। yes, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। There are the 6 electron in valence shell of the oxygen atom. It means that electron octet in oxygen is short of the 2 electrons and valency of oxygen is 2। In hydrogen in a water molecule, the oxygen atom completes its octet by forming 2 covalent bonds। अब ये अपना octet complete करता है 2 covalent bond बना के, one each with the 2 hydrogen atom, एक एक हाइड्रोजन से एक एक bond। While this happened, the duplet of the 2 hydrogen atom also completed। now octet of oxygen completed and duplet of the hydrogens completed।
there is one covalent bond between the compound atom hydrogen and chlorine of the molecule HCl. अब HCl के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है. Using this information to represent the formation of HCl molecule from the hydrogen and chlorine atom diagrammatically. इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इसका जो है डायग्राम हम लोगों को ड्रॉ करना है. मीन्स कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो क्या है ये से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि किस में शो किया है, इस फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. नाउ यस अनम्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी. अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछो. इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? अनम्यूट योरसेल्फ. यस. यस स्टूडेंट. Yes, is anybody having any doubts? Yes, student. Ansari Rizwan, Fatima Faria, Hamira. Is anybody having any doubts here? Yes, chlorine and chlorine is same atoms. Chloride is different from the chlorine because yes, chlorine have the 7 electron in the outermost shell, but when it form the chloride, yes, it have the 8 electron in its outermost shell. Mariam, understood? Chlorine and chlorine is same, but yes, what? क्लोराइड इज डिफरेंट देन द क्लोरीन. क्लोरीन क्या है? एटम है. क्लोराइड क्या है? आयन है. ये ध्यान में रखो. व्हाट आई टोल्ड टू यू. यस, ये क्लोरीन है. क्लोरीन में क्या होगा? यस 2,8,7. तो यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन में? 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे. ओके. क्लोरीन में क्या है? ये 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों क्या है? ये इक्वल है चार्जेस, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. बट व्हेन यू से क्लोराइड, जब आप क्या बोलते हैं क्लोराइड, तो ये क्या होता है? Cl माइनस होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2,8,8 मीन्स हियर प्रोटॉन्स आर 17. प्रोटॉन 17 है, बट इसका क्या है? ये इलेक्ट्रॉन 18 है. ये क्लोराइड है. क्लोराइड इज आयन. ओके. एंड क्लोरीन इज एन एटम ऑफ क्लोरीन. ओके. ये कोई इस पे चार्ज नहीं है, बट क्लोराइड बोलेंगे तो Cl माइनस, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज. और अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेफरेंस में देखेंगे तो क्या होगा? क्लोराइड में 17 प्रोटॉन होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि क्लोरीन एटम में क्या है? दोनों सेम है, इक्वल है. ओके.